Hello everyone, welcome to Adarsh English classes once again, and welcome to yet another important video in the History of English Literature series. So far we have covered 11th videos in this series, and now we have covered Anglo-Saxon period, Anglo-Norman period, before Chaucer, age of Chaucer, age of revival, Elizabethan age, Jacobean age, Restoration age, and Shakespearean poetry, the rape of Lucrece, a lover's complaint, and now we are going to discuss about Victorian age. It is our 12th lecture in this series. So without any delay, let's get started. The Victorian age. The Victorian age, named after the reign of Queen Victoria, who ruled from 1837 to 1901. She was the first English monarch to see her name given to the period of her reign while still living. And it was one of the most prosperous period in the history of England, a period of industrial development and colonial expression. Vast social, political and technological changes occurred during this age, and it is also sometimes called the age of reform, as lots of reform took place during this period. So it was an of democracy, the major democratic moment in Britain during Queen Victoria's reign, and was directed towards expanding voting population for parliamentary elections. But 1832 Reform Act still failed to extend the voting rights to these individuals who did not have any property in Britain. As a counter-attack, a movement was started in the England 1838, which asked or demanded votes for men, equal electoral payment for MPs, annual general elections and secret ballot. The reform bills 1867 and 1884 achieved further democratization of British politics, and by the end of 19th century, universal male suffrage becomes a reality, but women were still not entitled to vote. But it was also an age of triumph of middle class with their belief in progress and moral prudence. So during the Victorian period, British was a powerful nation with a rich culture. It had a stable government, a growing state, and an expanding franchise. It also controlled a large empire, and it was wealthy in part because of its degrees of industrialization and imperial holdings, in the spite of the fact that 3/4 or more of its population was working class. Late in the period, Britain began to decline as a global political and economical power relative to the other major powers, particularly at the United States, but this decline was not acutely noticeable until after World War II. So Victorian society was organized hierarchically, while race, religion, region and occupation were all meaningful aspects of identity and status. The main organizing principle of Victorian society were gender and class, as is suggested by the sexual double standard. Gender was considered to be biologically based and to be determinative of almost every aspect of individual's potential and characters. So Victorian gender ideology was premised on the doctrine of separate spheres, and this started that men and women were different and meant for different things. Men were independent while women were dependent. So class was both economic and culture, and encompassed income, occupation, education, family structure, sexual behavior, politics and leisure activities. So the working class, about 70 to 80% of the population, got its incomes from wages, with family income usually under 100 per annum. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वास्ट है, बट इस वीडियो में मैं विक्टोरियन एज के इम्पोर्टेंस फैक्ट को
इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड लिटरेचर बैकग्राउंड को समरी वाइज आपके सामने रख रही हूँ ताकि आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। और इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को, फॉर एग्जाम्पल एंग्लो सेक्शन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड और भी इस तरह के सारे, एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन पीरियड, रोमांटिक एज। और इस वीडियो से पहले हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट एज को ऑलरेडी अपलोडेड किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज वो सारे वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप एक सीक्वेंस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को इजी वे में समझ सकें। गाइस, ये पीरियड रही थी 1837 से लेकर के 1901 तक। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस एज में इंग्लैंड की क्वीन रही थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। इसीलिए इस एज को विक्टोरियन एज कंसीडर किया जाता है। और इनके पीरियड में नॉवेल्स ने काफी प्रोग्रेस की थी, पोएम से ज्यादा नॉवेल्स फेमस हो रही थी। इस एज में चार्ल्स डिकन्स जैसे ग्रेट पोइट्स भी आए और वुमेन राइटर भी काफी प्रोग्रेस में थी इस एज में। और इससे पहले मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड किया है, जैसे कि जैकोबियन एज, रेस्टोरेशन एज, रोमांटिक एज, इन सब पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन कैसे बनती हैं। जैसा कि हमने रोमांटिक एज में डिस्कस किया था कि रोमांटिक एज में किंग थे जॉर्ज थर्ड, लेकिन उनकी मेंटल पावर सही नहीं थी और उनके मेंटल एबिलिटी ठीक नहीं होने के कारण उनका जो बेटा था जॉर्ज फोर्थ वो गद्दी पर बैठा। कुछ सालों तक तो वो किंग बना रहा, लेकिन उनके डेथ के बाद विलियम द फोर्थ किंग बनते हैं जो कि उनके भाई थे। अब जब विलियम द फोर्थ की डेथ होती है, उनके बाद उनकी 18th ईयर्स ओल्ड भतीजी प्रिंसेस विक्टोरिया 1837 में इंग्लैंड की क्वीन बनती हैं। लेकिन जब विक्टोरिया क्वीन बनती हैं, उस वक्त इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थी। इट मीन्स अब इंग्लैंड के मोनार्क के पास सिर्फ नाम मात्र का पावर था, सारा पावर पार्लियामेंट के पास था। अब जैसे कि सब कुछ, इंग्लैंड का सब कुछ क्राउन के हाथ में आ गया था और मोनार्क के हाथ में अब कुछ नहीं रहा था। इसी वजह से इंग्लैंड में पॉलिटिकल, कल्चरल, इंडस्ट्रियल ये सारे चेंजेस आए। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का टाइम पीरियड बहुत लंबा है। रोमांटिक एज में पोएम्स बड़ी ज्यादा लिखी जाती थी, लेकिन विक्टोरियन एज में नॉवेल्स ज्यादा लिखे जाते थे। और अगर आप ध्यान दे करके देखेंगे इन चीजों को तो आपको पता चलेगा कि विक्टोरियन एज में सारे नॉवेल्स सीरीज वाइज चल रहे थे। अगर विक्टोरियन एज का पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो आप लोगों को 1857 का वो रिवोल्ट, वो महाविद्रोह आज भी याद ही होगा। 1857 की क्रांति किनको याद नहीं है। और ये जो 1857 का रिवोल्ट था, ये पहला रिवोल्ट था अंग्रेजों के खिलाफ। उस वक्त अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ इस तरह का रिवेलियन होगा। तो अब 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर्स लेकर के क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस बना दिया गया। इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इम्प्रेस का मतलब होता है महारानी बना दिया गया। और अब इंडिया का गवर्नेंस भी ब्रिटिश सरकार के पास थे। इनको सीधा समझिए, जैसा कि हमारे इंडिया में भी होता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर कम होती है और सारा पावर पार्लियामेंट के पास होता है। सेम इसी तरह से इंग्लैंड में हो गया था। सिमिलरली उसी तरह ब्रिटेन में मोनार्क का पावर एकदम लेश मात्र हो गया था और सारे पावर्स, सारे राइट्स पार्लियामेंट को चले गए थे। गाइस, ब्रिटेन ने अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए काफी बड़े बड़े स्टेप लिए थे और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी बढ़ावा मिला। अब जब पावर्स पार्लियामेंट के पास चली जाती है तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी बढ़ जाती है और एक तरफ साइंस भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था। आपको रिमाइंड करवा दूं कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये भी 1859 में ही आई थी और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मानने लगे लोग कि इंसान पहले बंदर थे और धीरे धीरे उनका स्टेज चेंज हुआ है। इस तरह से ब्रिटेन में मॉडर्नाइजेशन होने लगा था और अब लोग रिलीजियन इंस्टीट्यूशन से सवाल करने लगे थे और इसी के साथ ही इक्वालिटी को काफी बढ़ावा मिला
अब पहले लेडीज वर्क नहीं करती थी, लेकिन अब विक्टोरियन एरा में लेडीज भी फैक्ट्रियों में काम करने लगी थी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज हो रहा था, बदलाव हो रहा था और साइंस बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा था। और विक्टोरियन एज में इंग्लैंड सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री था। इसी समय स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था, जिससे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा था इजी वे में। टेलीफोन का भी आविष्कार हो गया था और दूसरी तरफ चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का भी इन्वेंशन इसी एज में कर डाला था। और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होने लगा था। और ऐसा माना जाता है कि जो डेवलपमेंट पिछले 300 सालों में हुआ था, उतना डेवलपमेंट विक्टोरियन एज में महज 30 सालों में हुआ। अब इन डेवलपमेंट्स एंड इन्वेंशंस की वजह से ब्रिटिशर्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा था नए नए कॉलोनीज बनाने में और लोगों को कंट्रोल करने में। नए नए तरह के हथियार बनाए जा रहे थे। लेकिन इन सब में ऐसा कह सकता है कि ऐसा कहा जाता है कि एक अमीर आदमी और ज्यादा अमीर हो रहे थे और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब हो रहे थे। के साथ ही 1833 में स्लेवरी अबोलिशन एक्ट भी बनाया गया था, क्योंकि स्लेवरी का प्रचलन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस एक्ट को बनाने का एकमात्र एम था गरीबों की जो सिचुएशन है उनको कंट्रोल करने का, उनकी स्थिति को सुधारने का। लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दी। और इसी के साथ 1833 में फैक्ट्री एक्ट भी लाया गया था, जिसके तहत मासूम बच्चों को फैक्ट्री में काम ना दिया जाए। और इस तरह से कह सकते हैं कि गरीबों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। इतना डेवलप्ड होने के बाद भी जो मेन थे वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन महिलाएं अब भी डिपेंडेंट ही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लेवरी का प्रचलन चल रहा था। So now we will discuss important political events during this period included the abolition of slavery in the British Empire and the expansion of franchise, working class political activism, most notably Chartism, and the rise of liberalism as the dominant political ideology, especially the middle class, and the nationalization of conservative and liberal parties. The growth of state and state intervention were seen in major acts, thus limited hours to factory workers and minor in public health acts, and in the provision of elementary education by the state. Political conflicts between Ireland and British and the rise of Irish nationalism and were also hallmarks to the era, as were women's rights activism, which resulted in the Married Women's Property Acts and the repeal of the Contagious Disease Act and the growth of education and employment options for women. इस पीरियड में जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे तो उसमें स्लेवरी का प्रचलन हटाया जा रहा था। ब्रिटिश एम्पायर में फ्रेंचाइज मताधिकार का अधिकार भी सबको दिया जा रहा था। लिबरलिज्म एक तरह से कह सकते हैं कि आ गया था पॉलिटिकल में। लोग खुलकर अपनी आवाज उठाने लगे थे, उठा रहे थे। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री में जो दोनों वर्कर्स काम करने लगे थे, मैन और वुमेन साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसी बीच पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ था आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में। काफी तरह के संघर्ष का माहौल था और मैरिड वुमेन को भी प्रॉपर्टी का राइट्स मिलने लगा था। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिटरेरी ट्रेट्स ऑफ विक्टोरियन एज। So the Victorian period was a high point in the history of English literature, which produced a number of prominent writers and the poets such as Charles Dickens, Thomas Hardy, Tennyson, and Browning. So writers of this age were perceptive to numerous changes occurring during this period and reflected upon these in their writings. It was an age when, through verse or prose, current social, economical, and intellectual problems were deflected. Through Tennyson and Robert Browning represented the two pillars of Victorian poetry. The novel became the most chosen from by writers later during the Victorian period. The poet Arthur Hawke Clarke attests this fact when he remarked that the modern novel referred to the modern poem, as novel was the best means of present a picture of lived under the stable background of social and moral values of the characters who were like the people encountered by readers.
It was the king of picture of life, been considered as the golden age of novel. As novelists portrayed a society in rapid transitions beside maintaining realistic approach. And the Victorian age novelists were divided into two generations. Guys, अगर हम विक्टोरियन एज के लिटरेचर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम निकल करके आता है चार्ल्स डिकेंस की, और इनकी नॉवेल पिगविक पेपर थी। वैसे आपको बता दूं कि चार्ल्स डिकेंस की ज्यादातर नॉवेल सीरियल से पब्लिश हुई है, और ये जो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल थी पिगविक पेपर, ये क्वीन विक्टोरिया के क्वीन बनने से पहले ही पब्लिश हो गई थी। इस एज में नॉवेल्स को डोमिनेट किया था चार्ल्स डिकेंस ने। उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवेल पिगविक पेपर्स को पब्लिश की थी। और आपको बता दो कि इनके कंपटीशन में थे विलियम मेकपीस ठाकरे, जिन्होंने वैनिटी फेयर लिखी थी, और इसी एज की 3 सिस्टर्स थी जिनको ब्रॉन्टी सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें शार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और एनी ब्रॉन्टी होती हैं। इन तीनों सिस्टर्स ज्यादा नॉवेल तो नहीं लिखे, लेकिन इन तीनों सिस्टर्स की एक नॉवेल, तीनों की 3 नॉवेल बहुत ही फेमस है। एमिली ब्रॉन्टी की वुदरिंग हाइट्स एंड शार्लोट ब्रॉन्टी की उनकी नॉवेल जेन एयर, और बात करें अगर एनी ब्रॉन्टी की तो इनकी भी एक फेमस नॉवेल है द टैलेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल। गाइस, ये नॉवेल बहुत ही शॉकिंग नॉवेल थी उस टाइम की, और ये उस टाइम की फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवेल भी मानी जाती है। लेकिन इन तीनों के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि चूंकि ये विमेंस थी तो ये अपने नाम से अपने वर्क को पब्लिश नहीं करवा सकती थी। उस टाइम पे महिलाओं को इतनी ज्यादा छूट नहीं दी गई थी कि वो अपने नाम से कोई भी वर्क पब्लिश करवा ले। एक तरफ तो विक्टोरियन एज में रिफॉर्म एक्ट आए थे, इसके चलते वर्किंग क्लास के लोगों में उसके कंडीशन में काफी सुधार आ रहा था। इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, सभी को मताधिकार का, वोट डालने का अधिकार मिल रहा था, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, इन सब का इन्वेंशन हो चुका था, इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी। लेकिन फिर भी इस एज में महिलाओं को दबाया जा रहा था, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। मैंने अभी आपसे कहा है कि महिलाएं डिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी इस एज में। ये एज किसी प्यूरिटन एज से कम नहीं थी। इस एज में लड़कियां जो होती थी वो अपने फैमिली के प्रोटेक्शन में रहेंगी, ऐसा रूल था, और उनको एक लिमिटेड एजुकेशन मिलेगी और जॉब अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड ही होंगे, ऐसा रूल था। इसीलिए इस एज में लड़कियां अपने नाम से किसी भी वर्क को पब्लिश नहीं करवाती थी। इसी तरह से एक और नाम आता है मैरी एन इवांस, जिन्होंने अपने वर्क्स को जॉर्ज एलियट के नाम से पब्लिश करवाया था। आपको बता दूं कि जॉर्ज एलियट की फेमस नॉवेल है मिडिल मार्च, एडम बीड, द मील ऑन द फ्लोर्स, शैलस मार्नर, रोमोला एक्सेट्रा। और इस एज में जो नॉवेलिस्ट थे 2 जनरेशन में डिवाइडेड थे। The first generation novelists are the early Victorian or generation novelists comprised of Charles Dickens, Anthony Trollope, Mrs. Gaskell, Bronte sister, and William Thackeray, etc. And the second generation novelists are George Eliot, George Meredith, Thomas Hardy, George Butler, and R.L. Stevenson, etc. were all major novelists of the second generation. Now we will talk about major novelists of the Victorian age. So Charles Dickens, he was. Now we will talk about Charles Dickens. हम लोग चार्ल्स डिकन्स के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर उनका बैकग्राउंड, उनका थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पे बताना चाहूँगी। He was born in February 7th, 1812, and he is generally considered the greatest of the Victorian era. His many volumes include such works as The Pickwick Papers, A Christmas Carol, The Crime, The Battle of Life, David Copperfield, Bleak House, and very most important novel A Tale of Two Cities, and Our Mutual Friend. Now, some short story collections are Sketches by Boz, The Mudfog Papers, Reprinted Pieces, and The Uncommercial Travels. ये जो पोएम्स हैं ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट जॉर्ज एलियट।
George Eliot was born as Mary Ann Evans at Warwickshire, England in 1819. So Mary Ann Evans started using the pen name George Eliot, and in 1856 when she to try her hand at writing novels. जब मैरी ने राइटिंग में अपना हाथ आजमाया, जैसा कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया है कि जो मैरी एन इवांस थी, इन्होंने अपने पेन नेम से अपने वर्क्स को पब्लिश करवाया, क्योंकि लड़कियों को उनके नाम से वर्क पब्लिश करवाने की आज़ादी नहीं थी। तो उन्होंने जॉर्ज एलियट के नाम से 1856 में उन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश करवाना स्टार्ट कर दिया था जॉर्ज एलियट के नाम से। और उनके कुछ मेजर नॉवेल्स हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, एडम बेड, द मील ऑन द फ्लोर्स, शैलेश मार्नर, रोमोला, ये सारे हैं। कुछ और हैं, फेलिक्स होल्ट, द रेडिकल, मिडिल मार्च। नाउ वी विल टॉक अबाउट एलिजाबेथ गेस्किल एंड चार्लोट ब्रॉन्टी। ये सारे जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारे इसी एज से रिलेटेड हैं। एमिली ब्रॉन्टी, एनी ब्रॉन्टी, विलियम मेकपीस, जॉर्ज मेरेडिथ, बेंजामिन, चार्ल्स किंग्सले, विकी कॉलिंस, सैमुअल वॉल्टर, रॉबर्ट लुइस, जॉर्ज गीसिंग, लेविश कोरल एंड थॉमस हार्डी। गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा थॉमस हार्डी के बारे में बताना चाहूँगी। थॉमस हार्डी is one of the greatest novelists in the whole range of English literature. Thomas Hardy united the Victorian and modern era, and his works act as a bridge between Victorian and modern novels. इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, ये लाइक अ ब्रिज की तरह काम करते हैं विक्टोरियन एंड मॉडर्न नॉवेलिस्ट के बीच में। और इनके मेजर वर्क्स हैं फार फ्रॉम द मिसिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, Jude and Upscare, Wessex Tales, and The Three Stranger and Other Stories, Townsmen, A Pair of Blue Eyes। ये सारे थॉमस हार्डी के वर्क हैं। अब अगर मैं इस एज की पोइट्री की बात करूं तो इनमें से नाम आता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नोल्ड की। गाइस, इस टाइम की पोइट्री और पोइट्स दोनों बहुत हद तक इन्फ्लुएंस थे रोमांटिक एज के राइटर्स और पोइट्स से। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस टाइम पे ड्रामेटिक मोनोलॉग को डेवलप किया। इसमें बहुत सारे पोइट्स ने इस ड्रामा को लिखना शुरू किया। इनमें सबसे अच्छा रॉबर्ट ब्राउनिंग ही यूज करते थे इस फॉर्म को। रोमांटिक ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म को सबसे बेहतर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही यूज किया। और अगर बात करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड साहब की, तो इन्होंने पोएट्री लिखने के साथ साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे भी वर्क किया है। आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड के पोइट लॉरियट थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और इनके लिए टी.एस. एलियट ने कहा था कि ये मैट्रिक्स मेलनकोलिया दोनों के मास्टर थे। के अलावा डीजी रोस्टी ने प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को ढूंढा था। के अलावा रडियार्ड किपलिंग भी इस दौर के पोइट रहे हैं। इन सब के साथ विक्टोरियन एज का जो पॉपुलैरिटी था वो डबल हो गई थी, यानी कि इस वक्त इस पीरियड में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। जबकि ड्रामा की अगर बात की जाए तो ड्रामा में इस टाइम पीरियड में ऑस्कर वाइल्ड साहब का बहुत बड़ा नाम था। ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने अपना फेमस वर्क इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट लिखी है, पब्लिश करवाई है। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये विक्टोरियन एज का ड्रामा था। अब अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन लिटरेचर की, तो इस टाइम पे चिल्ड्रन लिटरेचर काफी फेमस हो रहा था। इस टाइम पे चिल्ड्रन लिटरेचर भी लिखा जाता था, क्योंकि इस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो बच्चों से इंडस्ट्रीज में काम करवाया जाता था, तो उन पर जो लिटरेचर लिखा जाता था उनको चिल्ड्रन लिटरेचर कहा जाता था। और इसमें चार्ल्स डिकेंस भी शामिल हैं एंड रडियार्ड किपलिंग भी। और इनके अलावा कुछ और राइटर्स के नाम हैं, जैसे लेविश कैरोल, डैनियल मुल्कलॉक, जूलिया ओरोटिया, F.W. फेरार, एसब्रिज हेमिंग, थॉमस ह्यूज, रिचर्ड जेफरीज, चार्ल्स किंग्सले, रडियार्ड किपलिंग, एडवर्ड लियर, जॉर्ज मैकडोनाल्ड, कैप्टन मैरी, एना मोर, विलियम ब्रैटी रैंड्स, क्रिस्टीना रस्टी, जॉन रस्किन, रॉबर्ट लुइस एंड ऑस्कर वाइल्ड। तो गाइस, ये थे उस टाइम पीरियड के चिल्ड्रन लिटरेचर लिखने वाले ऑथर्स के नाम।
आपको बता दूं कि इसी टाइम पीरियड में अमेरिकन लिटरेचर भी ब्रिटेन के लिटरेचर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो रहा था। अब क्या हुआ कि अमेरिकन राइटर्स ने ब्रिटिश राइटर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश राइटर्स पर, अमेरिकन राइटर्स पर विक्टोरियन से ज़्यादा रोमांटिक्स का इन्फ्लुएंस था। ब्रिटिश के रोमांटिक का इन्फ्लुएंस था अमेरिकन लिटरेचर पर, अमेरिकन राइटर्स पर। और गाइस, अगर अमेरिकन नॉवेल्स की बात की जाए तो नॉवेल ढंग से डेवलप हुई थी, और नॉवेल ढंग से डेवलप हुई थी नैथानियल हाथॉर्न के आने के बाद। नैथानियल हाथॉर्न से इनका एक दोस्त हरमन मैनविले बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जिनका एक वर्क है मॉबी डिक। तो बता दूं कि नैथानियल हाथॉर्न का सबसे फेमस वर्क है ए स्कॉट लेटर। इसके बाद अमेरिकन लिटरेचर में रियलिस्टिक फिक्शन लिखे जाने लगे, और रियलिस्टिक फिक्शन में इनमें दो नाम सबसे ज़्यादा फेमस थे, मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स का। एक नॉवेल है एडवेंचर्स ऑफ हैकलबरी फेन, ये मार्क ट्वेन का वर्क था, उनका नॉवेल है। ऐसा कहा जाता है कि मार्क ट्वेन ने अपने नॉवेल्स को लिख करके अमेरिकन लैंग्वेज को ही चेंज कर दिया। हेनरी जेम्स को भी मेजर अमेरिकन राइटर्स में कंसीडर किया जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि विक्टोरियन एज को बाइलिंगुअल आपको अच्छे से समझा सकूं। आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।